well, safe at your home. So yesterday was the third day of our this web development using HTML program. Yesterday was the third day. So yesterday we covered a few major topics, which includes list. This was the last topic that we were discussing. That was lists in HTML. So I have discussed about two list. दो list के बारे में हमने discuss कर लिया था. एक था हमारा numbered list और एक था हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट या अननंबर्ड लिस्ट. इस दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. But we have not discussed about this definition list and we have not discussed about nested list. So today first I will be completing these two topic, that is the definition list and the nested list. And after that today we are having a few more tags to be discussed, like we will be discussing image tag, we will be discussing subscripts or superscripts, we will be discussing linking, which is very interesting part. And last we will be discussing the marquee tag. Okay, so these are the new tags that we will be covering today in our session. So before starting with these tags, let me give a brief intro about the yesterday list that we discussed. Okay, so as you can see that I have opened my screen and you can see that this was the last program that I discussed. Okay, that it was the numbered list or we can say that ordered list. यहाँ पे आप टाइप में जैसा लिखोगे, अगर टाइप में हमने कैपिटल ए लिखा है तो वो कैपिटल ए के पैटर्न को फॉलो करेगा. अगर हम यहाँ पे स्मॉल ए लिखते हैं या इफ आई एम गिविंग एनी न्यूमेरिक वैल्यूज और इफ आई वांट टू गो विद द रोमन न्यूमरल्स, राइट, so we will be giving that particular option inside this type attributes. Okay, so there is very important thing which मैम आज के क्लास में किसी वेब पेज का कोडिंग मोबाइल पे रन करके दिखा दीजिए. उसको हम कैसे रन करेंगे अपने लैपटॉप से? ओके, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू. लैपटॉप फोन, ओके, मैं देखती हूँ मैं कैसे कर सकती हूँ उसको, मैं देखती हूँ. ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया था. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको डिस्कस करना जा रही हूँ. जैसे यहाँ पे देखिए ये P18 है, ठीक है, 18th नंबर प्रोग्राम. सो दिस इज द स्टार्टिंग प्रोग्राम ऑफ टुडे सेशन. सी, यहाँ पे हमने एक और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज किया, दैट इज कॉल्ड स्टार्ट. ओके, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया है OL, दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट. टाइप में मैंने लिखा है कैपिटल ए. Okay, it means it will be starting with capital A, B, C, D, like that. But I don't want to start with the beginning. It means I don't want to start from the capital A. मुझे A का शुरुआत से नहीं चाहिए. मैंने यहाँ पे लिखा है start equals to 8, मतलब 8वें नंबर से चाहिए. तो A, B, C, D, E, F, G, H. 8th number will be H, ना? So our listing will start from 8th position. Okay, the pattern will be ABCD only, but ABCD का वो 8वें पोजीशन से लेके बाकी लिस्टिंग करेगा, राइट. एक चीज आप हमेशा ध्यान देना कि स्टार्ट में जब भी आप कोई वैल्यू डालोगे, बिकॉज स्टार्ट इज ऑल्सो एन एट्रीब्यूट ऑफ दिस ऑर्डर्ड लिस्ट. सो वेन एवर यू आर गिविंग एनी value to this particular attribute, that is a start, it should be numeric. वो जो वैल्यूज आपका होना चाहिए वो न्यूमेरिक होना चाहिए. लेकिन टाइप के अंदर जो वैल्यूज लिखते हो आप, वो डबल कोट्स में आप लिखते हो. इट कैन बी न्यूमेरिक, इट कैन बी अल्फाबेट्स, जिस पैटर्न में आपको चाहिए, राइट. बट स्टार्ट के अंदर जो वैल्यू आप लिखोगे इट शुड बी ऑलवेज न्यूमेरिक. जैसे यहाँ पे जैसे मान लो मैंने 3 लिख लिया, इट मीन्स ये शुरू होगा 3rd पोजिशन. ओके, लेट मी शो यू द आउटपुट, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. P18. आप देखोगे कि स्टार्ट का वैल्यू मैंने 3 लिखा है. इट मींस इट विल टेक द पैटर्न ऑफ ABC बट विल स्टार्ट इट्स प्रोग्राम from 3rd point, that is from C. Starting position will be, see, just wait, it will be appearing. So you can see now it is starting from C. Okay,
So this is this was one point which I left yesterday, that apart from type attribute, we have another attribute that is called start attribute. We have another attribute that is called start attribute, and the value of a start attribute should be always numeric. उसकी values क्या होनी चाहिए आपकी? Numeric, right? अब जैसे 3 मैंने डाला ना, अगर आप 5 डालते हो तो it will be starting from come on, tell me 5 कहाँ से शुरू होगा? Students, please answer. Okay, I got answer in chat box. Okay, fine. E. Small e लिख रहे हो, capital E. Yes, Rupesh Chaudhary replied, Anand replied, Vidhi. Okay, no small e. Don't get confused with the small e and capital E, because I have written the ordered as capital, na? So it will start with capital E. Fantastic answer. So it will start with capital E. So I hope this part is clear to you. Okay. So apart from this type attribute inside the ordered list, you can use the concept of start attribute also, और उसके अंदर जो values आप डालोगे, it will be always numeric. Okay. There is okay the answer. Okay, I got the answer, students. So no need to write it again. Okay. So I got the answer. It will be starting from E. So I hope this part is clear to you. Okay. Now next we are having definition list. So first let me explain you what is this definition list and where we are going to use this list, right? From the name it is clear. इसके नाम से ही बहुत चीजें क्लियर हो जा रही हैं. जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी आप कोई बुक पढ़ोगे, मोस्ट प्रोबेबली when you prefer NCERT books ना, या और भी अदर राइटर्स के बुक्स होते हैं, तो किसी भी टर्म को जब हम डिफाइन करते हैं तो ऊपर में लिखते हैं, like if I'm going to describe HTML, so I will write HTML at the top, and after that I will write a definition that HTML is a web development markup language. We use HTML for designing the structure of the website and all, right? So whenever we have to show something like that in the form of web page, अगर web page में हमें कुछ वैसा दिखाना है कि ये इसका key term है, इसका ये मतलब है, this is the meaning, right? So we will be using the concept of definition list. So definition list consists of 2 more tags. Definition list के अंदर हमारे पास 2 और tag, जैसे आप ordered list use करते हो या अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करते हो, तो उसके अंदर हम लोग li टैग का यूज करते थे फॉर क्रिएटिंग द लिस्ट. वी वर यूजिंग li टैग. इन द सिमिलर फैशन व्हेनेवर वी विल बी यूजिंग द डेफिनेशन लिस्ट, जब हम लोग डेफिनेशन लिस्ट को यूज करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर हमें 2 और टैग का यूज करना पड़ेगा. एक आपका होता है dt टैग. ओके, यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, इट इज dt stands for definition term, right? Definition term, right? And DD stands for definition description. DL will define that it is a definition list. उसके अंदर हम लोग यूज करेंगे DT, जो बताएगा किस टर्म को हम डिफाइन करें. So I am defining HTML. So HTML will be written inside DT, that is definition term. And after that HTML के बारे में जो मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी कि what actually HTML is all about, और जो भी मैं पैराग्राफ के फॉर्मेट में डेफिनेशन दूंगी, that will go inside DD. That will go inside DD. So definition list will consist of 2 more tags inside it. Now let me show you how it will work. Let me show you, just wait. E18. Just let me show you the next, that is 19. As you can see on the screen, I have used your heading में मैंने लिख दिया definition list. देखो DL मतलब DL is the starting. It indicates that अब user क्या कौन सा list use कर रहा है, definition list, right? अब देखो definition list के अंदर मैंने DT use किया है. DT means definition term. मैं किसका definition देने जा रही हूँ? NCSA. It is a National Center for Supercomputers. Okay. So I'm going to give you the descriptions of NCSA. मैं इसका description आपको दे रही हूँ, right? तो ये चूंकि हमारा डेफिनेशन टर्म है जिसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं, इसको हमने किस टैग के अंदर लिखा है? DT टैग के अंदर. आई हैव रिटन इनसाइड DT टैग, राइट? दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन टर्म. अब ये NCSA है क्या, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम लिख रहे हैं. जो पूरा डिस्क्रिप्शन हम लिख रहे हैं वो किसके अंदर लिख रहे हैं? DD के अंदर. दैट इज कॉल्ड डेफिनेशंस. ओके, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दोनों चीज लिख दिया है.
definition description dd और dt that is called definition term, right? अब यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं। अब डी मैं लिख दिया कि एनसीएस द नेशनल सेंटर, जो भी मुझे इसके बारे में लिखना था। फिर दूसरा डेफिनेशन टर्म हमारे पास है कर्नल थ्योरी सेंटर, राइट? तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक डेफिनेशन का टर्म हो गया जिसको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने क्या लिखा है, तो वो डी में मैंने लिखा है सीटीसी इज लोकेटेड ऑन द कैंपस ऑफ कर्नल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, कुछ भी मैंने लिख दिया, राइट? तो इससे इसको एक बार मैं रन कर दूं तो आपको पता चलेगा कि ये dt से क्या हो रहा है, dd से क्या हो रहा है, राइट? और dl इंडिकेट्स कर रहा है कि इट इज द डेफिनेशन लिस्ट। और इस ये टैग को ओपन किया, इसको क्लोज किया, इन दोनों को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। दीज आर एम्प्टी टैग्स और दीज आर वॉइड टैग्स, क्योंकि देखो मैंने इसको यहाँ पे क्लोज नहीं किया। इट मीन्स ये आपको अब समझ जाना है, इट इज अंडरस्टूड द टैग्स विच आई एम नॉट क्लोजिंग, दीज टैग्स आर एम्प्टी टैग्स और वॉइड टैग्स, राइट? Let me execute this. Are you getting the point? देखो कैसे आ गया है, ये आ गया। अब इसका डेफिनेशन यहां से शुरू हो रहा है। Are you getting, my dear students, are you getting what is this definition tag is actually saying? किसी चीज को कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको वेब पेज में इस तरीके से चीजों को लिखना है, राइट, तो आप इस देखो, तो ये आपका हो गया डेफिनेशन का टर्म, एनसीएस है, ये टर्म हो गया, ठीक है? और ये आपका क्या हो गया, उसका डेफिनेशन। फिर दूसरा टर्म मैंने क्या लिखा, कर्नल थ्योरी सेंटर, राइट? फिर उसका मैंने नीचे डी में क्या लिख दिया, उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। तो दिस इज द अपीयरेंस, ये अपीयर होता है। नो मैम प्लीज रिपीट दिस, प्रिया। ओके फाइन, ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। जैसे अगर आप अपने बुक्स में या आंसर शीट्स में जब किसी चीज को डिस्क्राइब करते हो, तो आप किसी चीज को अगर डेफिनेशन लिखते हो या किसी चीज को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करते हो, तो जनरली वी रेफर दैट टर्म इन अ बोल्ड लेटर्स और समथिंग लाइक दैट, फिर डैश देते, फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं थोड़ा सा, एक दो लाइन छोड़ के, कुछ वैसा जो भी पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं। तो अगर वैसा ही कुछ डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर हमें अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करना है, सपोज आपका ही कॉलेज का वेबसाइट है, उसमें अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, किसी डिपार्टमेंट्स को हाईलाइट करना चाहते हो, या फिर आपके कॉलेज में कोई नया चीज सेटअप हुआ है, सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी और सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च लैब इज देयर, तो you want to give emphasis on that so that whenever user will visit that website, yes we can use paragraph tag also, paragraph tag भी आप ले सकते हो। तो जब हमारे पास एक्सक्लूसिवली डेफिनेशन टैग आ गया है, तो फिर हम पैराग्राफ टैग क्यों यूज करें? क्योंकि डेफिनेशन टैग आपको ऑटोमेटिकली लाइन भी गैप दे रहा है, स्पेसेस भी दे रहा है, ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ है। अगर आप पैराग्राफ टैग लिखोगे तो थोड़ा सा आपको उसको मिड में लाना पड़ेगा, तब तो थोड़ा सा बीच में आएगी। आप देख रहे हो ना, जब आप इस वेब पेज को देखोगे तो देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से शुरू हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड है ना, फिर यहाँ से शुरू हुआ है। अगर आप पैराग्राफ टैग यूज करोगे तो आपका तो ठीक है, एक लाइन का गैप आ जाएगा, लेकिन कंटेंट यहाँ से शुरू होगा, इसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस देना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमारे पास जब एक जैसे अब कहते हैं ना कि बनाने के लिए किसी चीज को हम मान लीजिए हमारे पास कोई घर में कोई वैसा मटेरियल नहीं रहता है, तो हम अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा के कुछ भी करके वैसा कर लेते हैं, ठीक है, कुछ हद तक, बट दैट इज नॉट द 100% अपीयरेंस, राइट? इन द सिमिलर वे आप पैराग्राफ टैग का यूज करके थोड़ा स्पेसेस देके थोड़ा बहुत शिफ्ट करके आप उसको उस तरीके से टेक्स्ट के फॉर्मेट में ला सकते हो। बट व्हाई टू गो विद सच अ टीडियस जॉब व्हेन ऑलरेडी वी हैव बीन गिवन अ फीचर? जब हमको स्पेशल एक फीचर ही मिल गया कि जब आप इस टाइप के कंसेप्ट को वेब पेज पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो सिंपली यूज डेफिनेशन टैग, सो इट इज बेटर। अदरवाइज आप बोल्ड यूज कर सकते हो, इटैलिक यूज कर सकते हो, कल तो मैंने बताया अंडरलाइन यूज कर सकते हो। तो करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, उसको भी यूज करके हम उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसको एम्फेसिस डाल सकते हैं। बट इफ वी आर गेटिंग, मैम नोटपैड शो करिए ना, नोटपैड आई मीन द कोड, ओके ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है, इट्स देयर, देखो राइट। तो उस केस में हमारा क्या हो गया कि जब बेटर है कि जब हमारे पास एक स्पेशल टैग ही आ गया, तो क्यों नहीं इस टैग को डायरेक्टली हम यूज करें, rather than going with पैराग्राफ टैग, br टैग, स्पेस देंगे, फिर लाइन गैप करेंगे। इट इज बेटर कि we should go with this tag. Okay, I hope this question is clear. So ma'am, definition or description, it's same tag? No. So ma'am, definition or description, no, you cannot say like that. See,
DL, this indicates definition list. DL stands for definition list. definition list के अंदर आपके पास दो टैग है जो उस फीचर को फुलफिल करने के लिए आपको मदद करता है. तो जैसे आप देखो, जब कल के प्रोग्राम में जैसे हम लोग ये 18 वाले प्रोग्राम, OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट, और लिस्ट के लिए LI यूज किया था. तो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर बुलेट्स बनाने के लिए आपने क्या यूज किया? LI यूज किया. LI इंडिकेट्स लिस्ट. इन द सिमिलर वे जब हम यहाँ पे DL लिख दिए तो ये बता दिया ब्राउजर को कि ये एक डेफिनेशन लिस्ट बनने जा रहा है. अब डेफिनेशन लिस्ट में ब्राउजर को तो नहीं पता है कि डेफिनेशन टर्म कौन सा है, किस टर्म को यूजर डिफाइन कर रहा है. तो DT के अंदर जो वर्ड लिखोगे वो आपका क्या बन जाएगा? डेफिनेशन टर्म. तो उसको वो अलग से दिखाएगा. और इसका जो डिस्क्रिप्शन लिखोगे उसको थोड़ा सा आप देखोगे, जब आप इस वेब पेज को देखोगे तो देखो टर्म आपका एकदम अलग आया है और उसका जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल नीचे से आया है. राइट. तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो DT लिखे हो ये टर्म हो गया और DD हो गया उसका डिस्क्रिप्शन. इन द सेम वे अभी और भी कुछ मुझे डिस्क्राइब करना रहता तो हम यहाँ पे एक टर्म लिख देते HTML, सॉरी HTML कह रही हूँ, यहाँ पे हम लिखते DT और DT के अंदर मैं लिख देती कि मैं HTML को डिस्क्राइब कर रही हूँ और इसके HTML का डिस्क्रिप्शन लिख देती, इट इज ए वेब डेवलपमेंट टूल. राइट. ये मैंने लिख दिया. राइट. तो ब्राउजर को तो नहीं पता ना कि यूजर किसको टर्म बना रहा है. तो जब DT लिख दोगे उसके बाद जो वर्ड लिखोगे तो ये ब्राउजर को इंडिकेशन मिल जाएगा कि ओके इट इज द डेफिनेशन टर्म, और इसका क्या हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके बारे में DD के अंदर जो चीज लिखेंगे ये इसका क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्शन हो जाएगा. सो आई होप प्रिया दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. एक बार मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देती हूँ. तो देखो एक नया टर्म इसमें और ऐड हो जाएगा. देखो HTML ऐड हो गया. तो ये सारे टर्म है, डेफिनेशन टर्म है, ये सारे डेफिनेशन टर्म है, ये भी 3 डेफिनेशन टर्म है और ये उसका डिस्क्रिप्शन हो गया. सो प्रिया ओके यस मैम इट्स क्लियर. ओके ओके फाइन. डाउट बस नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे. जब भी कुछ आगे चीज पढ़ेंगे वहां पे मैं इसको यूज, इसलिए बेटर है कि आप थोड़ा टाइम लो. अगर डाउट है तो स्टॉप मी. ओके आई विल ट्राई टू सॉल्व इट. ठीक है. सो इट्स गुड इफ यू आर हैविंग डाउट्स एंड यू आर पुटिंग प्रेशर ऑन मी कि यस मैम पहले उसको बता दीजिए. इट्स गुड. चलो so let's start with this. So I hope we are clear with this definition list. इसके अंदर दो चीज है, DT और DD. Now come to nested list. Okay, now come to nested list. अब आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि nested list क्या है. ठीक है. तो जैसे देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट, जैसे मान लो कभी कभी हम लोग दिखाते हैं, जैसे मान लो मुझे दिखाना है BCA और BCA के अंदर मुझे दिखाना है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3. तो BCA अपने आप में एक कोर्स है. फिर मुझे दिखाना है BBA. फिर BBA के अंदर मुझे 3 सेमेस्टर्स है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3. और आई एम हैविंग BBA, MBA उनके अंदर. तो एक लिस्ट ऑलरेडी कोर्सेज का लिस्ट है और उस कोर्सेज के अंदर हमारे पास किस चीज का लिस्ट है? उसके सेमेस्टर्स का लिस्ट है. सो वी आर हैविंग हाउ मेनी लिस्ट? वी आर हैविंग 2 लिस्ट. राइट. तो लिस्ट के अंदर जब लिस्ट को हमें यूज करना होगा, राइट, इफ वी हैव टू यूज लिस्ट इनसाइड लिस्ट, so that term is known as nested list. हम लोग उसको क्या बोलते हैं? nested list. Nest, the root term is nest. root term word को पकड़ो. nest. nest is what? नेस्ट क्या, जैसे एक के ऊपर एक घोष, मतलब उस टाइप से स्ट्रक्चर रहता है, लूप स्ट्रक्चर रहता है. राइट. तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट. ठीक है. अभी मैं एक दो एग्जांपल आपको देती हूँ, देन इट विल मोर क्लियर टू यू. सो वी वेयर ऑन P19 ना. So hopefully it will be P20. P20. Okay, fine. Let me see that it's there. Okay, fine. It's there. It's there. हाँ. जैसे देखो nested list. हाँ. जैसे मैंने एक UL टैग यूज किया. UL stands for unordered. मतलब मैं कोई ऑर्डर यूज नहीं कर रही हूँ, मैं वो बुलेट्स और कोई पैटर्न यूज करना चाहती हूँ. ठीक है. देखो इस UL के अंदर पहला लिस्ट मैंने डाला A few new Indian states और इसके अंदर फिर से एक UL डाला. इसको समझो मैं क्या कह रही हूँ. यहाँ पे एक UL टैग ओपन किया. ठीक है. आउटर UL टैग है. ठीक है. उसके अंदर एक लिस्ट है, मतलब उसका एक ऑप्शन, वो स्क्रीन पे क्या दिखेगा? few new Indian states. राइट. और few new Indian states को मुझे नंबरिंग करना, मुझे बुलेट्स के फॉर्म में दिखाना है कि 3 नए स्टेट्स हैं, झारखंड है, उत्तरांचल है और छत्तीसगढ़ है.
तो फिर से एक यूएल टैग मैंने ओपन किया, तो तुम देखो ये यूएल टैग किसके अंदर है, ये वाले यूएल के अंदर। तो वी आर यूजिंग लिस्ट इनसाइड लिस्ट, तो ये यूएल हो गया आउटर, दिस यूएल टैग इज कॉल्ड आउटर टैग, एंड इस यूएल के अंदर हमने एक और यूएल यूज किया, राइट, जिसका मैंने टाइप क्या डाल दिया, सर्कल। तो ये 3 स्टेट्स आपको सर्कल में दिखेंगे, झारखंड, उत्तरांचल एंड छत्तीसगढ़। ओके, फिर ये यूएल टैग को मैंने बंद कर दिया, मतलब एक मेरा लिस्ट खत्म। अब दूसरा ऑप्शन मैंने दिखा है 2 अदर स्टेट्स आर, ओके, ये किसका है, ऊपर वाले यूएल का एलआई है, राइट। उसके अंदर फिर मैंने 2 और ऑप्शन दिया, जिसका टाइप मैंने क्या डाला, स्क्वायर, ठीक है। इट विल बी क्लियर फ्रॉम द आउटपुट व्हेन यू विल सी, बहुत टफ नहीं है, डोंट गेट पैनिक, ठीक है। यूएल, फिर इसके अंदर 2 ऑप्शन डाला, तो एल आई डाला, ये यूएल को बंद कर दिया। अब आप देखो कि सबसे लास्ट में मैंने ऊपर वाले यूएल को बंद किया, इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि इस ऊपर वाले यूएल का ये 2 लिस्ट, एल आई इसका 2 ऑप्शन, और इस ऑप्शन के अंदर फिर एक लिस्ट है जिसके अंदर कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन, राइट। लेट मी शो यू द आउटपुट, देन इट विल बी क्लियर टू यू। Are you able to see the output? I hope with the output something will be more clear. Let me show you the output along with the code. Okay, मैं एक बार देखती हूँ, यहाँ पे तुम्हारा ये आउटपुट है, ये तुम्हारा प्रोग्राम, देखो। तो जब तक दोनों को साथ रखो और तब समझो, तो इट विल बी क्लियर। देखो, ये एक ऑप्शन था सर्कल, उसके अंदर ये चीजें आपकी दिख रही थी, ओके, और यहाँ पे आपका देखो ये ऑप्शन दिख रहा है, राइट। देखो ये यूएल, तो ये यूएल से पता चला लिस्ट, और ये एलआई, तो ये एलआई हो गया फ्यू न्यूज इंडियन स्टेट्स, और ये दूसरा एलआई 2 अदर स्टेट, तो ये दोनों एक लेवल में है। और इसका अपना ऑप्शन है झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, जिसको मैंने सर्कल लिया, जिसको मैंने क्या लिया, सर्कल लिया, और ये जो सेकंड वाला मैंने यूएल लिया है, जिसको मैंने क्या लिया, स्क्वायर लिया। तो आप देखो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है ना। सो दिस इज व्हाट द नेस्टेड लिस्ट। तो अगर इस टाइप का कुछ इंफॉर्मेशन आपको अपने वेब पेज में डिस्प्ले कराना है, जैसे हम लोग डालते हैं ना डॉक्यूमेंट्स विच यू नीड टू कैरी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हम लोग ऑप्शन में डाल सकते हैं ये सारी चीजें, या फिर कोर्सेज रनिंग एट आवर कॉलेज, जो कोर्सेज रन हो रहा है उसके अंदर क्या क्या सब ऑप्शंस है, राइट। यस रजनीश, यू आर रेजिंग योर हैंड। यस रजनीश, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am, visible. Yes, ma'am, clear. Yes, Rajneesh, you want to say something? You have raised your hand, Rajneesh. Yes, ma'am. मैम नंबर टैग के अंदर अननंबर टैग का यूज कर सकते हैं क्या? एकदम कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? डिफरेंट का कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे आप यहाँ पे लिख दीजिए ओएल टैग, ऑर्डर्ड हो गया, तो ये जो आउटर वाला है ये 1 2 दिखेगा, और अंदर वाला बॉक्स दिखेगा या जो बुलेट्स दिखेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। इतना सोचना क्या, उसको कर ही लेते ना, देखिए ना, उसको कर ही लीजिए ना। जैसे देखिए, जो मन में क्वेश्चन है उसको उतना रखना नहीं होता। हाँ, ये दिस इज माय फर्स्ट कंसेप्ट। जैसे ओएल लिख दिया मैंने, है ना, इस ओएल को यहाँ बंद कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। टाइप क्या डालना चाहते हैं, बोलिए। टाइप मान लीजिए 1 ही डालते हैं, ठीक है, नंबरिंग से ही शुरू हो, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। देखिए, इसको हम यहाँ पे फाइल पे जाते हैं, सेव एज, इसको कुछ अलग नाम से कर देते हैं, P20 था ना, इसको 20_1 कर देते हैं, ताकि पता चले कि 20 का ही सब डिवीजन था, ठीक है। अब आप जैसे देखो, मैं आपको दिखाती हूँ इसको, 1 मिनट, ये सॉरी आई एम नॉट गिवन द एक्सटेंशन, वेट, ये एज अ टेक्स्ट फाइल सेव हो गया, डॉट एचटीएमएल, वो आइकन नहीं बना था ना, आप देखते हैं यहाँ पे, अब आइकन बन गया होगा, अब बनाना, इसको रन करते हैं। हाँ, ठीक है रजनीश, देखो तो यही पूछ रहे थे, 1 2 हो गया ना, न्यूमेरिक भी कर सकते हैं रजनीश। This was perhaps your question. I think maybe some network issue from his side, or maybe he replied. Yes, ma'am. Okay, he replied in the chat box. Yes, ma'am.
नंबर लिस्ट में रोमन नंबर कैसे शो करते हैं? अनुराग श्रीवास्तवा, कल ही तो बताया था, उसको लिख दो स्मॉल आई, टाइप के अंदर लिख दो स्मॉल आई। इसका मतलब जो पीडीएफ जा रहा है उसको नहीं देखना है ना, उसको नहीं देखना है, उसको रिवाइज नहीं करना है, राइट। अगर करते तो तुम ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते। देखो रोमन में आ गया 1 2, देखो अनुराग श्रीवास्तवा, इज इट देयर? मैम सर्कल और स्क्वायर की जगह नंबर यूज कर सकते हैं ना, वो तो पैटर्न है ना, तो पैटर्न की जगह पे नंबर कैसे कोई पैटर्न हो सकता है, राइट। तो अब स्क्वायर और उसकी जगह पे आप नंबर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहो कि ये 1 2 3 हो और ये ABCD हो तो दोनों को ऑर्डर लिस्ट बना दो। अब इसके अंदर वाले कंटेंट को भी जैसे मैंने अनऑर्डर्ड लिखा है, इसको भी आप ऑर्डर लिस्ट बना दो, ये क्या, ये तो कर सकते हैं। लेकिन आप टाइप सर्कल की जगह पे टाइप 1 डालेंगे तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, बिकॉज जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये उसका एट्रीब्यूट है सर्कल। तो आप उस केस में ऑर्डर लिस्ट यूज कर दो। अगर आपको ये पैटर्न नहीं चाहिए, अगर आपको न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस केस में आप ऑर्डर लिस्ट यूज कर दो, राइट। I hope participants I'm clear to you, and or whatever queries you are putting, I hope that you are getting your queries sorted out. Am I right? Rajneesh, Anurag, are you getting the point? Okay. So I can get the notification in the chat box that yes. Okay, fine. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, done. ठीक है, तो चले आगे बढ़े। तो हमारा ये लिस्ट वाला पार्ट खत्म, कोई दिक्कत नहीं है लिस्ट में। all the 4 types of list, rather you say, once again I am giving you a brief of that. Unordered list, या उसको आप बोल सकते हो unnumbered list. Second, it was the ordered list or numbered list, right? Third was your definition list, right? And after that last one was your nested list. Last आपका क्या था? Nested list. Okay, so this list part is clear. Now let's move to the next part. Okay, so let me show you. So today, so this slide we covered. With this slide we covered. Now come to this slide. Okay, so now we are going to discuss about image tag. अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन आएगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बैकग्राउंड इमेज डिस्कस किए थे, है ना। हम लोग जब बॉडी टैग यूज कर रहे थे, व्हेन वी वर यूजिंग द बॉडी टैग, ओके, तो उस पे हमने क्या डिस्कस किया था कि हम बॉडी के अंदर बीजी कलर में कलर डाल सकते हैं और बैकग्राउंड इक्वल्स टू कोई इमेज को डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो तो पूरा इमेज स्क्रीन पे आ जाएगा। अब सपोज मैं चाहती हूँ कि हमारे वेब पेज के किसी पर्टिकुलर जगह पे बस एक इमेज दिखे। I am not interested in showing the image on the entire web page. मुझे पूरे entire web page पे image को display नहीं करना। I just want, suppose आपके कॉलेज का लोगो है, तो लोगो तो एक जगह बस डिस्प्ले होता है, या सपोज कोई वैसा कुछ प्रिंसिपल सर का फोटो है, या फिर कोऑर्डिनेटर HODs का फोटोज अलग अलग डिपार्टमेंटल पेजेस में आते हैं, तो दैट इमेज इज नॉट विजिबल टू द होल पेज ना, वो एक कॉर्नर में रहता है इमेज, और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन रहता है फ्रॉम द डायरेक्टर डेस्क, from the desk of principal or school captain, college captain, college फिर जो भी तो उस टाइप का जो छोटा हम प्रोफाइल पिक टाइप्स का वेब पेजेस पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, राइट। या फिर आप एज अ स्टूडेंट भी जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो कहीं, तो आप देखते हो कि जो आपका इमेज है वो पूरे आपके एडमिट कार्ड पे नहीं रहता है, that appears on a particular corner that is being decided by the organization or the agencies कि वो इमेज को कहाँ रखेंगे, वो टॉप में रखे या मिड में रखें, राइट। तो फॉर दैट टाइप ऑफ पर्पस, उस टाइप के पर्पस के लिए, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है। निशत बानो, डन मैम, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर डूइंग पैरेलली इट्स वेरी गुड, बट ट्राई टू रिमेंबर दैट हमें लॉजिक भी सीखना है, ठीक है। अब हम लोग जैसे मैं 4 एग्जांपल दी, आप इसमें 5-6 नए एग्जांपल और करना, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल ना कि अब मैं इस पे बहुत, अब इसी को अब इस ये आप लिस्ट पे ही बहुत एग्जांपल हो सकता था, लिस्ट के अंदर लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट डिपेंड करता है, तो उस उतना मैंने नहीं आपको कराया। अब मैंने आपको एक रूट बता दिया, मैंने आपको एक प्रोसेस बता दिया, है ना। आई एम डूइंग यस मैम, आई एम लिसनिंग आल्सो, ओके गुड, वेरी गुड निशित, वेरी गुड, ठीक है। सो मैं कहाँ थी, हाँ, आई वॉज ऑन द इमेज सेक्शन, राइट। तो आप देखते हो कि वो जो इमेज होता है वो इंटायर वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होता,
होता, that is at some corner, right? So for that particular purpose we have a special tag that is called image tag. Okay, that we have a special tag that is called image tag. With the help of that image tag we can display any type of image, either jpg, gif, jpeg, bitmap image, any format of image on any particular part of web page. It will not take the entire, it will not cover the entire web page. It will take up suppose a corner, किसी corner में या top में आ जाएगा, extreme right में आ जाएगा या bottom में आ जाएगा, ठीक है? For that we will be using the image tag. So now let me show you. Let me show you the image tag. It's 20 now. We will be moving to 21. Oh, very good. See. So again here I will like to quote you one thing. Whenever you are uploading an image, okay, so that image should be either on the same folder where your other web pages are kept. प्लीज माय डियर स्टूडेंट इसको अच्छे से सुनना, अदरवाइज जैसे ही ग्रुप ओपन होगा क्वेरीज के लिए तो आपके साइड से सवाल आएगा मैम मेरा इमेज अपलोड नहीं हुआ, तो फिर आप सोचोगे अपने वेब पेज को सेव किया किसी और ड्राइव में, इमेज आपका है किसी और ड्राइव में, तो इट विल नॉट कनेक्ट. ओके, सो आइदर आप अपने उस इमेज को उस या तो उस फोल्डर में, जैसे मैंने एक फोल्डर बनाया ना ANC SDP HTML का, मैं जो भी काम करती हूँ आपके कॉलेज रिलेटेड मैं सारा चीज उसी फोल्डर में डाल देती हूँ, सो दैट एनी टाइम इफ यू डिमांड, योर कॉलेज डिमांड, तो आई विल सिंपली गिव दैट फोल्डर कि सर एवरीथिंग इज देयर, राइट? इन द सेम वे तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी इमेज या जो भी चीज मुझे यहाँ पे अपलोड करना होता है तो मैं उस इमेज को इस फोल्डर में डाल के रखती हूँ. उस इमेज को मैं इस फोल्डर में डाल के रखती हूँ सो दैट यहाँ पे मुझे बस इमेज का नाम लिख देना होता है. ठीक है, अगर मैं इस फोल्डर में इमेज के डाल के नहीं रखूंगी तो जब मैं ये फोल्डर आपके कॉलेज में दूंगी तो इमेज तो मेरे लैपटॉप किसी और ड्राइव में होगा, वहां जब इस प्रोग्राम को तुम रन करोगे तो वहां इमेज के जगह पे कुछ नहीं दिखेगा. क्यों? क्योंकि लोकेशन तो चेंज हो गया. इसीलिए जनरली जो वेब डेवलपर्स भी होते हैं जब भी वो एक प्रोफेशनल लेवल पर डेवलपमेंट करते हैं तो वो हर एक क्लाइंट का एक फोल्डर बनाते हैं और उनके सारे इमेजेस को उसी फोल्डर में रखते हैं. अगर डेवलपर अपने सिस्टम के एड्रेस से इमेज को अपलोड करेगा तो मान लो मैंने वो फोल्डर क्लाइंट को दे दिया तो क्लाइंट के तो ई ड्राइव में वो इमेज नहीं होगा. Are you getting, my dear student, what I am just saying? Just one or two unmute yourself and just say me कि this point is clear or not, because this is very important. And generally हम लोग यहीं पे गड़बड़ करते हैं, सब चीज सही कर देते हैं और इमेज आ ही नहीं रहा है. हम लोग ये भूल जाते हैं कि इमेज का लोकेशन हमारा कहाँ पे. यस पूजा, is that clear? Sweta, is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन फाइन, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे मान लो अब तुमको अगर मेरा सारा प्रोग्राम चाहिए ना तो मैं तुम्हें अगर ये फोल्डर दे दूंगी ना, इस फोल्डर को तुम अपने लैपटॉप में ले जाओगे और सीधे सीधे बस रन कर दोगे, सब चीज रन होगा. क्यों? क्योंकि मैं जो भी इमेज यूज कर रही हूँ, वॉट एवर थिंग्स आई एम यूजिंग, दैट थिंग इज अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर फोल्डर ओनली. तो ये फोल्डर तुम्हारे पास रहेगा तो इमेज का लोकेशन तो मैंने इसी पेज में वो इमेज अपलोड हो जाएगा. अगर मैं अपने सिस्टम का एड्रेस डाल देती कि ई ड्राइव के अंदर का कोई एक इमेज, तो जब ये चीज तुम्हारे पास जाता या फिर मैं किसी और को देती ये फोल्डर तो वहां वर्क नहीं करता. सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है. अगर आप चाहते हो कि नहीं हम इस फोल्डर में नहीं रखे, कंप्लीट एड्रेस डालें, तो कल मैंने आपको बताया था ई ड्राइव के अंदर इस फोल्डर के अंदर अगर आपने इमेज रखा है तो वहां से कॉपी कर लो. बहुत लोग पूछे भी थे कि हम कैसे कॉपी करेंगे एड्रेस को, मैंने बताया भी था, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो. ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं. तो देखो यहाँ पे हम एक टैग यूज कर रहे हैं, इमेज टैग. क्या यूज कर रहे हैं? इमेज टैग. डोंट गेट कंफ्यूज विथ बॉडी के अंदर जो यूज कर वो बैकग्राउंड था, वो किसका एट्रीब्यूट था? बॉडी का एट्रीब्यूट था. और यहाँ पे इमेज अपने आप में एक टैग है और वहां पे हम लोग बॉडी के अंदर बैकग्राउंड एज एन एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे. बॉडी के अंदर हम लोग बैकग्राउंड एज एन एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इमेज नाम का एक टैग है. ठीक है, इमेज. अब SRC, SRC means source. SRC means source, right? So this is an attribute of this image tag. SRC is a attribute of this image tag. तो हमने लिखा ing SRC. Okay, SRC मतलब सोर्स. क्या? कौन सा सोर्स? तो हमने लिख दिया AN college 1.jpg. ये ऑलरेडी कॉलेज का फोटो
मेरे सिस्टम में है, मेरे उस फोल्डर में है। SRC स्टैंड फॉर सोर्स रजनीश, मीन्स वी कैन नॉट टेक फ्रॉम आवर गैलरी। जानवी, आप अपनी गैलरी से ले सकते हो फोटो, उस गैलरी के फोटो को आप एक फोल्डर में डाल दो और उस जिस फोल्डर में आपका HTML का फाइल है। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप अपनी गैलरी से लोकेट करोगे और जब वो फाइल तुम किसी और को दोगे तो इमेज तो उसकी गैलरी में नहीं है, वो तो उसके फोन के गैलरी में खोजेगा, तो एड्रेस तो मैच नहीं करेगा, राइट? इसलिए वो आपका एरर देगा। इसलिए जब भी कोई प्रोफेशनल लेवल पे हम लोग काम करते हैं तो वी यूज्ड टू हैव ऑल द इमेजेस टुगेदर इन वन पर्टिकुलर फोल्डर, राइट? और वो पर्टिकुलर फोल्डर को सर्वर पे डाल देते हैं ताकि जब ये वेबसाइट खुलेगा तो वहां से सारा इमेजेस फेच हो जाएगा, ठीक है? जैसे आपके कॉलेज की वेबसाइट में जितने सारे इमेज दिखते हैं तो सब ये सारे इमेज आपके मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट के लोग ने किनको दिया होगा, जो उनके वेबसाइट को डेवलप किया है, और वो इन सारे इमेज को वहां पे एक फोल्डर में रख के अपलोड कर दिया। और कुछ ऑप्शंस कॉलेज को रहते हैं जो टाइम टू टाइम वो चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? अमन राज फिजिक्स मैम, डन, ओके डन, ओके वेट, ठीक है। SRC स्टैंड फॉर सोर्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो हेडिंग में दिखेगा तो डिस्प्ले एंड इमेज, उसके बाद एक आपको टेक्स्ट दिखेगा AN कॉलेज पिक, क्या दिखेगा? AN कॉलेज पिक, ओके। आपका उसके बाद यहाँ पे इमेज SRC की जगह पे मैंने ये लगा दिया, ठीक है। इसको कोई क्लोज करने की जरूरत नहीं, ये भी आपका एम्प्टी टैग। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगी मैंने नहीं किया है क्लोज, इसका मतलब ये एरर नहीं है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि these tags are empty tag, it can be used without closing also. Okay, let me execute this. How is it? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? AN college pic is here, यहाँ पे डाल दिया मैंने। तो अब जहां पे आप पिक्चर चाहते हो, जिस टेक्स्ट के पास जहां पे, तो आप उस वहां पे इमेज सोर्स टैग को आप क्या कर सकते हो? इंक्लूड कर सकते हो, राइट? Is that clear, students? Okay, done, ma'am. Ma'am, how can I do this in mobile? मोबाइल में भी आपको, आपका मोबाइल में भी तो इमेज किसी न किसी लोकेशन पे होता है ना, आपका होता है ना, पूरा गैलरी का एड्रेस होता है ना, वहां पे उसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। आपके मोबाइल में भी तो जैसे हमारा रहता है ना, कहाँ पे है, डाउनलोड्स में है या डॉक में है या फिर व्हाट्सएप इमेजेस में है या फेसबुक इमेजेस में है, जहां से भी है तो उसका भी लिंक आता है। फिर से दिखाइएगा एक बार प्लीज मैम। मैम, इज इट नेसेसरी टू राइट डिस्प्ले एन इमेज इन H1? नो 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 नो, वो तो मैंने, अब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा सा आपके अट्रैक्शन को गेन करने के लिए, आपका ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है तो वहाँ पे टेक्स्ट आपका प्रॉपर दिखे, इसलिए मैंने हेडिंग टैग थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें मैंने लिख दिया कि ये कोड किस चीज का है। तो ये कोड है टू डिस्प्ले एन इमेज, आप इसको हटा दो, क्या जाता है, इट इज नॉट नेसेसरी। वो तो मैंने हेडिंग बस इंक्लूड कर दिया ताकि स्क्रीन पे दिखे कि ये दिस कोड इज फॉर व्हाट, दिस कोड इज टू डिस्प्ले एन इमेज। सो जिनका क्वेश्चन था कि मैम फिर से दिखा दे, तो सी दिस इज देयर। सो वंस अगेन मैम, इट्स ऑलरेडी देयर। विश्व जी आप देखो, द कोड इज ऑलरेडी देयर, स्क्रीन पे दिख रहा है आपका, ठीक है। ओनली इमेज का साइन शो कर रहा है मैम, पिक नहीं आ रहा मेरा। पूजा एक बार चेक करो कि तुम्हारा इमेज सही से, इमेज का नाम, इमेज का फॉर्मेट JPG फॉर्मेट है या क्या है, एक बार उसको देखो। इमेज का नाम प्रॉपरली चेक करो तुमने सही से डाला है या नहीं, या उसका फॉर्मेट देखो, ऐसा तो नहीं कि वो कोई और फॉर्मेट का है, तुमने एक्सटेंशन कुछ और लिख दिया है, तभी ये प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ओके, want to take image in center, I have to use center tag. Very good Ashish, yes, सेंटर टैग यूज करो। अभी बताएंगे ना, इमेज में भी हमारे पास अलाइनमेंट ऑप्शन है, वो यूज कर सकते हो, या फिर आप सेंटर टैग भी यूज कर सकते हो। सो दिस 21 प्रोग्राम इज क्लियर, प्रोग्राम नंबर 21, आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब देखो, जैसे हमने क्या किया, हम चाहें तो पैराग्राफ टैग भी बीच में यूज कर सकते हैं, ताकि वो इमेज तो हमारा वो सेंटेंस के एकदम सामने आ रहा था ना, हम चाहते हैं कि ऊपर में सेंटेंस है और हमारा इमेज जो है वो नीचे दिखो, तो मैंने ऊपर में लिख दिया AN कॉलेज पिक,
और उसके बाद इमेज एसआरसी टैग को क्या कर दिया मैंने, नीचे लिख दिया। पैराग्राफ टैग का यूज करके इससे क्या होगा कि हमारा इमेज कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, इन सब चीजों का यूज आप कर सकते हो। लेट मी शो यू। 21 is the same. Sorry, 22 na. I was supposed to execute 22. 21 हो गया था। ये देखो, ये है ना, देखो यहाँ पे पैराग्राफ टैग लगा दिया, तो पैराग्राफ टैग क्या एक लाइन का गैप देता है, तो देखो एक लाइन का गैप भी है, उसके बाद इमेज आ गया। इससे ये क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं है कि हम पहले के टैग को यूज नहीं कर सकते, जिस टैग को हमें जब जरूरत पड़ेगी हम उस टैग को भी। मैम एसआरसी हमको लैपटॉप पे कहाँ दिखेगा, एसआरसी लैपटॉप पे कहाँ दिखेगा, एसआरसी एट्रीब्यूट है। SRC? ठीक है, वो तो बस तुम्हारे इमेज का एसआरसी एक एट्रीब्यूट है। देखो निशन, देखो इमेज एसआरसी, एसआरसी इज द एट्रीब्यूट ऑफ दिस इमेज टैग। एसआरसी स्टैंड्स फॉर सोर्स, कि आखिर कौन सा इमेज, इमेज का सोर्स कहाँ है, तो मैंने इमेज का नाम लिख दिया कि ये इमेज सोर्स है। अगर तुम्हें पूरा अपने लैपटॉप के किसी फोल्डर से कोई इमेज लेना है, तो कल मैंने बताया था ना, जैसे यहाँ पे तुम जाओ, अब मान लो तुम अपने पीसी में गई, सपोज मेरे पास एक जावा फोल्डर था जिसमें हमारा एक पिक्चर था, बैक करके, कल कोई पिक्चर था, वो था इसमें, ठीक है, एक पिक्चर था। तो यहाँ पे जैसे ही आ गया ई ड्राइव के अंदर जावा फोल्डर, यहाँ पे जाओ तुम और तुम यहाँ पे कॉपी कर लो एड्रेस को, और वो एसआरसी की जगह पे ये वाले एड्रेस को डाल दो। कैन यू सेट द इमेज साइज? यस, वी कैन सेट, we can set by width and height, all things are available, we will doing, हम लोग सब चीज, वो सब चीज करेंगे। ठीक है, we can set the image side width, we can give height and width of the image, we can give height and width of the image, so don't worry, we can give। okay, ठीक है, तो हम इसको इमेज को अपने अकॉर्डिंग कहीं भी एडजस्ट करा सकते हैं। ठीक है, अगर आप पैराग्राफ टैग लगा दोगे तो वो इमेज उस टेक्स्ट से थोड़ा सा कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, let me show you another attribute of this tag, 22 na 23, अब एक और चीज है, ये टाइटल है, राइट। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे देखते हो कि जैसे ही आप उस इमेज पे माउस पॉइंटर ले जाते हो, वो बताता है दिस इज न्यू बिल्डिंग। जैसे मान लो एन कॉलेज का कोई ओल्ड बिल्डिंग होगा और एक नया बिल्डिंग बना, नया बिल्डिंग का पिक्चर वेबसाइट पे अपलोड हुआ, या कोई ऑडिटोरियम बना है या कोई कंप्यूटर लैब बना है। ठीक है, तो उसका इमेज अपलोड हुआ है वेबसाइट पे, और जैसे ही हम चाहते हैं कि यूजर माउस पॉइंटर वहां पे ले जाए, तो वो इंडिकेट करे कि दिस इज आवर न्यू ऑडिटोरियम, दिस इज आवर न्यू साइंस ब्लॉक, दिस इज आवर न्यू कंप्यूटर ब्लॉक, राइट, ऐसा कुछ। ठीक है, तो उस केस में वेट विश्वजीत, वेट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, एसआरसी में इमेज का नाम लिख दिया मैंने जिसको मुझे अपलोड करना है। फिर हमने क्या लिख दिया, टाइटल, क्या लिख दिया, टाइटल में क्या लिख दिया, दिस इज न्यू बिल्डिंग। ओके, तो देखोगे जैसे ही आप माउस का पॉइंटर वहां पे ले जाओगे, ठीक है, तो वो आपको क्या दिखने लगेगा, न्यू बिल्डिंग। जो भी मैसेज आप यहाँ पे लिखोगे दैट विल बी डायरेक्टली डिस्प्लेइंग ऑन योर कंप्यूटर, on your web page. Let me show you 23. Back चले जाते हैं हम लोग, STP 23. Are you getting something? Just pay attention to the web page. इज दैट क्लियर? जैसे आप माउस पॉइंटर वहां पे ले जा रहे हो, आपको ये दिख रहा है ना, दिस इज न्यू बिल्डिंग। आर यू एबल टू सी दैट स्टूडेंट्स? यस मैम, यस मैम। मैम कैन वी यूज एनी एट्रीब्यूट इन एनी पर्टिकुलर टैग? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। आशीष संकट, नहीं, अब कोई भी एट्रीब्यूट को किसी भी टैग के साथ यूज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हैं, अब जैसे आपका बॉडी में है बैकग्राउंड कलर, तो आप इमेज के साथ बैकग्राउंड कलर यूज नहीं कर सकते हो, हेडिंग में बैकग्राउंड कलर यूज नहीं कर सकते हो। तो हर एक टैग का अपना अपना एट्रीब्यूट्स है।
कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो कॉमन है, जैसे अलाइनमेंट है या फिर फॉन्ट साइज है, कुछ ऐसे हैं कि जो कि कॉमन है सबके लिए, तो उस केस में आप उनका यूज कर सकते हो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है। लेकिन जो एट्रीब्यूट जिस पर्टिकुलर टैग के लिए एक्सक्लूसिवली बने हुए हैं, तो आपको उसको उसी टैग के साथ यूज करोगे, देन ओनली यू विल गेट द इफेक्ट, अदरवाइज यू वोंट गेट द इफेक्ट। ओके, इज दैट क्लियर? Ashish, is that clear? Okay, fine, fine, fine. So यहाँ पे आप जो भी टाइटल में लिखोगे, that will be displayed on the screen. Whatever you will be writing, it will be displayed on the image. The moment mouse pointer को आप यहाँ पे ले जाओगे, it will be displayed. Okay. Come to this. तो आप यहाँ पे ध्यान देना, टाइटल यूज किया, कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया मैंने? टाइटल। और टाइटल के अंदर जो भी मैसेजेस आपको डालना है, दैट मैसेज यू हैव टू स्पेसिफाई। सपोज यू वांट टू गिव एनी मैसेज, कुछ भी जो रेलिवेंट मैसेज है, या फिर कभी कभी कुछ इमेज की जगह पे बस हमारा वो सेव बन जाता है। सपोज वो इमेज किसी भी कारण बस अभी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, तो आप कुछ भी वहां पे एक लिख सकते हो, इमेज विल बी अवेलेबल सून या एनीथिंग, सो दैट यूजर विल गेट एन आइडिया। तो इफ यू वांट यू कैन राइट एनीथिंग हियर, ठीक है। सो दिस इज P23. लेट्स मूव टू P24. अच्छा, यहाँ पे किसी ने पूछा था हाइट एंड विड्थ ना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपके पास एक एट्रीब्यूट है हाइट जनरली वी गिव हाइट इन पिक्सल। ओके, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं, कंप्यूटर साइंस डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ पिक्सल। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 300, हाइट डाल दिया, विड्थ डालते हैं WIDTH इक्वल्स टू 500। इसको नीचे कर देते हैं, 23.5 सेव। इसको ऑलरेडी ये रन किया हुआ ना। अब देखिए आपका इमेज का हाइट एंड विड्थ बढ़ गया। दिस वाज द मैम, इमेज का अलाइनमेंट सेट होगा, कैसे सेट होगा? अनुराग कमिंग टू द टॉपिक, कमिंग। सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ सम स्टूडेंट, बहुत चैट बॉक्स में बहुत आगे चला गया उसका क्वेश्चन, ठीक है। हाउ कैन वी सेट द साइज? विश्वजीत, right? So we will be doing with the help of attribute. The image tag has an attribute that is called height and width. तो मैंने 300 500 डाल दिया, आप यहाँ पे कर दो 800 कर दो, ठीक है, कुछ भी कर दो, तो वैसा आपका इमेज का साइज हो जाएगा, ठीक है। देखो डिस्प्ले करो, हो गया क्लियर? तो इमेज थोड़ा ब्लर हो जाएगा, इमेज आपका क्या होगा, थोड़ा ब्लर हो जाएगा, क्योंकि इमेज जैसे ही आप साइज को इंक्रीज करोगे, तो हाई रेजोल्यूशन का अगर इमेज नहीं रहेगा, it will be blurred. Okay, in some web pages we click some words and reach another page. We will learn this also, ma'am. Oh my god, how much this student is enthusiastic. Ashish, ma'am. Yes, Ashish, we are going to learn this today only. We are going to learn this. इसका मतलब तुमने देखा नहीं, नीचे मैंने लिखा है, देखो तो इसमें लिंकिंग टैग, लिंक करना सीखेंगे हम लोग। जो Okay, चीज so patience, पढ़ाई जा रही है I उसको know- फॉलो करो। देखो, we will be discussing this linking tag. Okay, so Ashish, just keep patience, ठीक है। Everything is for you only, ना, सब चीज तो आप ही लोग, ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ लेके चली, मैं सब चीज आपको कहूंगी। It's that simply you have to just keep patience. Okay, ना जितना whatever will be possible for me to deliver in the 15 days, I from my side there will be no wastage of time for even a second कि हाँ भाई ऐसा है, because of my problem you just got some problems, ऐसा कुछ नहीं होगा। just you keep patience and keep listening. okay, definitely आपको हर एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा है ना, that will be solved. okay, मैम न्यू बिल्डिंग वाला एक बार फिर से दिखाएं। न्यू बिल्डिंग यही तो था, न्यू बिल्डिंग यही तो था, नहीं उसको चेंज कर दिया हम लोगों ने। न्यू बिल्डिंग वाला इमेज हमारा 20 यही था। दिस इज द न्यू, बस टाइटल आपको ऐड कर देना, एट्रीब्यूट, टाइटल इज एन एट्रीब्यूट। ओके, टाइटल इज एन एट्रीब्यूट, बस उस एट्रीब्यूट को आपको लगा देना है, टाइटल इक्वल्स टू दिस इज न्यू बिल्डिंग।
और इमेज का साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत ज्यादा वो बड़ा हो गया तो ब्लर दिख रहा है। ठीक है, देख लो आप स्क्रीन पे आपका विजिबल है कोड और आपका यहाँ पे आउटपुट भी विजिबल है। ठीक है, देखो जैसे ही माउस पॉइंटर आप वहाँ पे ले गए तो दिख रहा है ना, दिस इज न्यू बिल्डिंग, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल। इसको टूल टिप भी बोलते हैं। आप कभी कभी मान लो कभी कोई टेक्निकल पर्सन से आप मिलो तो वो बोल दे कि डू यू नो हाउ टू ऐड टूल टिप, तो डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज द सेम थिंग। अर्लियर HTML के पुराने वर्जन्स में टूल टिप यूज होता था, HTML के पुराने वर्जन में टूल टिप यूज होता था, बट द रिसेंट वर्जन जिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इट इज यूजिंग द टाइटल, इट इज यूजिंग टाइटल एज एन एट्रीब्यूट, और इसी को हम लोग टूल टिप भी बोलते हैं। तो अगर कभी इफ यू आर फेसिंग एनी इंटरव्यू एंड somebody is asking कि how to add tool tip in an image on a web page, so don't get panic, tool tip is just similar to title tag, sorry, title attribute, it is similar to the title attribute, so don't get confused. Earlier version or some other ब्राउजर सपोर्ट्स टूल टिप, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर था पुराना वाला, वो सब टूल टिप को सपोर्ट करता था, तो वहां पे टाइटल के जगह पे एट्रीब्यूट टूल टिप TOOLTIP टूल टिप यूज होता था। बट नाउ जो भी हमारे पास रिसेंट अपडेटेड ब्राउजर है दैट डील्स विद द एट्रीब्यूट दैट इज कॉल्ड टाइटल, और ये थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन हमेशा HTML सब में होता रहता है। तो दिस इज व्हाट अ कंप्यूटर expert or computer person needs to be keep updating himself or herself, so that what recent changes, क्या नया चीज आ गया, क्या अपडेट अवेलेबल हो गया। ठीक है, so for any interview question, if anybody is asking you tooltip or title, so that is the same. Okay, so this part is clear. Now let's move to the next. Yes ma'am, image set alignment, okay, okay, done. यहाँ तक सबका हो गया, चलो। Now 23 ना, now come to 24. निखिल एक बार तुम चेक कर लो तुम्हारा ब्राउजर कौन सा है। ठीक है, अगर फायरफॉक्स होगा या इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा तो वो टाइटल को मे बी सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, वो टूल टिप को सपोर्ट करेगा। तो अगर तुम्हारा क्रोम है, अपडेटेड क्रोम वर्जन है, राइट, तो इट विल बी सपोर्टेड, टाइटल आपका सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, अब अलाइनमेंट प्रॉपर्टी है। अलाइनमेंट इज ऑल्सो एन एट्रीब्यूट ऑफ दिस इमेज टैग। जैसे हमने अभी इसका एट्रीब्यूट देखा, SRC देखा, टाइटल देखा, उसके बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज आई डोंट थिंक इट विल सपोर्ट टाइटल। गो विथ क्रोम, इफ यू हैव क्रोम गो विथ क्रोम। ठीक है, और इन द प्लेस ऑफ टाइटल यू रीड टूल टिप, इट मे वर्क, इट मे वर्क, राइट। थोड़ा सा ये ब्राउजर टू ब्राउजर वेरी करता है, बट जितने भी रिसेंट ब्राउजर हैं, अपडेटेड ब्राउजर हैं, दैट विल ओनली एक्सेप्ट टाइटल। ओके, अब जैसे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है अलाइन, ALIGN, दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट लिख सकते हो, लेफ्ट लिख सकते हो, सेंटर लिख सकते हो, और यहाँ पे दो चीज और है, टॉप और बॉटम। इमेज के केस में आपके पास दो ऑप्शन और है, Chrome is supporting title. Yes, I know Vivek, it will support. Okay. तो अलाइन में आप राइट लिख सकते हो, लेफ्ट लिख सकते हो, टॉप लिख सकते हो, बॉटम लिख सकते हो, और सेंटर लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि वो आपका इमेज राइट अलाइन हो जाएगा, या सेंटर में आ जाएगा, या टॉप में चला जाएगा, बॉटम में आ जाएगा, राइट। लेट मी शो यू हाउ इट विल वर्क। देखो राइट में चला गया, ठीक है, देखो ये राइट में चला गया। ठीक है, हम लोग चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं नेक्स्ट में दिखाती हूँ, और भी अलग अलग अलाइनमेंट मैंने यूज किया। अब देखो जैसे राइट कर दिया, लेफ्ट कर दिया, आप सेंटर कर सकते हो, बॉटम भी कर सकते हो, टॉप भी कर सकते हो। ओके, दैट विल आल्सो वर्क। लेट मी शो यू, दो कर दिया, लेफ्ट राइट करके दिखा दिया। देखो एक लेफ्ट चला गया और एक राइट आ गया, राइट।
तो यू कैन डू लाइक दिस, अलाइनमेंट आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। So now let's move to the next P25 done. Next move to 26. What is there in 26? How to display an image in the center. To display an image, okay, in the center. जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा था मैम सेंटर टैग का यूज कर सकते हैं अगर इमेज को बीच में डालना है, एकदम डालना है तो आप यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी आपने सेंटर टैग पढ़ा है तो उस केस में अलाइनमेंट लिखने की जरूरत नहीं है कि अलाइनमेंट इक्वल्स टू सेंटर, उतना नहीं लिख के सीधे आप उस इमेज को किस टैग के अंदर डाल दो, आप सेंटर टैग के अंदर डाल दो। जैसे ही आप उसको सेंटर टैग के अंदर डाल दोगे, राइट, तो ऑटोमेटिकली वो आपका इमेज आपके वेब पेज के एकदम सेंटर पे आ जाएगा। जस्ट यू कैन सी द आउटपुट, isn't it? To display an image in the center, you can see this image is exactly in the center of this web page. इस web page के exactly कहाँ पे है वो, center पे, ठीक है। So are you comfortable with this image tag, students? Are you comfortable with this image tag? Are you able to use it? Are you able to use the different attributes of image tag? Like we discussed SRC, we discussed height, we discussed width, we discussed title, we discussed alignment. I'm sorry, how we said alignment? Pardon, please. Alignment equals to ALIGN. Align equals to right. Align equals to center. See, it is already there. देखो, इसमें इतना सॉरी क्या फील करना है। देखो इमेज SRC, अलाइन राइट डाल दो, अलाइन लेफ्ट डाल दो तो वो लेफ्ट आ जाएगा, राइट डाल दोगे राइट आ जाएगा, राइट। और इफ यू वांट टू कौन इफ यू बोल वांट रही टू है? डिस्प्ले रजनीश? एग्जैक्ट, यस रजनीश, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है रजनीश। इट इज बेटर यू राइट। मैम सेंटर एंड अच्छा, हाँ, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ठीक है। तो आप यहाँ पे अलाइन राइट लिख दो, अलाइन लेफ्ट लिख दो, जो लिखना है। और उसके अलावा हमने बताया था कि एक हमारे पास सेंटर टैग होता है ना, जो डायरेक्टली हमारे इमेज को कहाँ कर देगा, सेंटर पे, विदाउट यूजिंग एनी अलाइन प्रॉपर्टीज, राइट। तो सेंटर टैग अपने आप में एक टैग है। सेंटर व्हाट, इमेज को, किसको सेंटर करूं भाई, तो इस इमेज को। और उसके बाद ये सेंटर टैग को आपको क्लोज भी करना है, डोंट फॉरगेट टू क्लोज इट, राइट। तो अब आपका इमेज क्या होगा, एग्जैक्टली आपके वेब पेज के मिड में आ जाएगा। आप देखो, दिस इज एग्जैक्टली इन द मिड ऑफ योर वेब पेज। सो दिस इज अबाउट the use, how we can put the image in the center of a web page without using the align properties. Okay, well, let's move to the next P26. P28, no, 27. Please let me see, there is some queries in the Raji. थैंक यू मैम। मैम अलाइन के साथ सेंटर वर्क नहीं कर रहा है। आहा, अब ये मेरे को बताओ, जब तुम सेंटर भी लगा रहे हो और अलाइन भी लगा रहे हो, तब तो सेंटर के अंदर आके वो सबसे पहले किस प्रॉपर्टी में वर्क करेगा, अलाइन पे। तो वो फोकस अलाइन को करेगा फिर। अगर आप ऐसा यूज कर दोगे, जैसे देखो, अब जैसे देखो, जैसे यही है ना, अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ALIGN, अलाइन इक्वल्स टू राइट, ठीक है ना। मान लो मैंने ये कर दिया, ठीक है, तुम यही कर रहे होगे। देखो दोनों एक साथ कैसे काम करेगा। तो देखो वो सेंटर में आया, सेंटर के आने के बाद वो इमेज SRC में जैसे ही आया तो वो उसको क्या कह रहा है, उसके अलाइनमेंट को क्या कह रहा है, राइट कर दे रहा है। इट विल वर्क लाइक दिस। जब आप सेंटर का यूज कर रहे हो तो देन देयर इज नो नीड टू यूज दिस अलाइनमेंट अगेन, राइट। जब आप सेंटर यूज कर ही दिए, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आप इमेज को एकदम सेंटर में चाहते हो, तो फिर अलाइन क्यों, ठीक है। देन देयर इज नो नीड टू यूज दिस अलाइन। ओके मैम, सेंटर और राइट के मिडिल में पिक लगाना है, तब क्या करना है।
सेंटर और राइट के बीच में, ठीक है। फिर आपको स्पेस यूज करना पड़ेगा, आपको थोड़ा उसको देखना पड़ेगा कि सेंटर और राइट के बीच में इमेज कहाँ पे जा रहा है, किस लोकेशन पे उसको डालना है, उसके आगे पीछे कौन सा टेक्स्ट है, तो उस टेक्स्ट के जगह पे इमेज एसआरसी यूज कर देंगे। इट विल टोटली डिपेंड कि हमें लगाना कहाँ पे। ऐसे आप एकदम व्हाइट पेज पे बोलोगे राइट के लेफ्ट में डालना है, कैसे डालना है, तो थोड़ा मुश्किल होगा। वहां पे कोई ना कोई कंटेंट होगा, उस कंटेंट के आगे पीछे हम लोग यूज can we use BR tag for this? Of course you can use. Of course you can use BR tag. जो टैग आप बता दिया वो सारे टैग को आपको जहां जरूरत लग रहा है आप उसको easily यूज कर सकते हैं, ठीक है। Now let's move to the next program, that is 27. It is all about subscript and superscript. So I think many of you are from chemistry background also, ma'am. I think, ma'am, you are from chemistry background, ma'am? Yes, yes. Oh. Huh. So students, you must have so many chemical formulas we write, H2O, NaCl, या फिर हमें सफिक्स प्रीफिक्स की जरूरत होती है तो हम लोग बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला H2SO4 लिखते हैं। तो मान लो कुछ आप एजुकेशनल वेबसाइट बना रहे हो या कुछ वैसा बना रहे हो जहाँ पे आपको उस टाइप की चीजों को लिखना है। आनंद, आई एम फ्रॉम केमिस्ट्री, वेरी गुड। तो अगर तुम्हें H2SO4 तुम्हारे वेब पेजेस पे दिखाना है तो आनंद बोलेगा ठीक है मैम, इतना छोटा सा बात आप कह रहे हो कि HTML को, ये H2SO4 को बस दिखाना है, तो देखिए हम लिख दिए H2SO4। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स अगर हम लोग ऐसा लिख देंगे तो मिस तो हमें 0 ही देंगी, 0 देंगे, और प्लस जब हमारे पेपर्स को दिखाएंगी क्लास के बीच में तो आई डोंट नो व्हाट शी इज गोइंग टू डू विद अस, सो वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, है ना। इसका मतलब एक प्रॉपर तरीका होता है। H2 नीचे आएगा, SO, फिर जो 4 है वो O के नीचे आएगा 4, ठीक है। तो अगर कुछ उस टाइप का कंसेप्ट हमें यूज करना है, या फिर हमारे पास मैथ्स के स्टूडेंट भी हैं वो इतना अलजेब्रा में पढ़ते हैं, A+B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB ऐसा कुछ लिखना है, या फिर साइन स्क्वायर कुछ वैसा लिखना है, तो इस टाइप का अगर कोई रिप्रेजेंटेशन हमें यूज करना है ऑन अ वेब पेज में, अगर हमें कुछ वैसा डिस्प्ले करना है तो डायरेक्टली हम अगर बॉडी में लिख देंगे तो देयर इज नो सच ऑप्शन, we cannot put our text in such format. So for that particular purpose we have further 2 tags, हमारे पास उसके लिए फिर 2 एक्स्ट्रा टैग्स HTML कह रहा है, ठीक है। वो 2 टैग क्या है, तो आप देखो, एक है आपका सबस्क्रिप्ट, ठीक है, सबस्क्रिप्ट्स, एंड दूसरा है सुपरस्क्रिप्ट। तो सब के लिए SUB यूज करेंगे और सुपर के लिए SUP यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल है, इसको बहुत हम लोग खींचेंगे नहीं। जैसे देखो O2 मुझे लिखना है, O2, तो O तो नॉर्मल लिख दिया, अब नीचे 2 लिखना है तो 2 को किस में डाल दिया, सब में। तो ये जनरली केमिस्ट्री में यूज करेंगे, ठीक है। ये BR टैग डाल दिया ताकि 2-3 लाइन का गैप आए। अब मुझे लिखना है A⁻², तो A तो नॉर्मल हो गया, अब उसके ऊपर हमें 2 लिखना है ना, A⁻², है ना। तो क्या लिखेंगे, सुपर, किसका सुपर, तो 2 विल, और फिर उसको क्लोज भी करना है, सबको भी क्लोज करना है और सुपर को भी क्लोज करना है। तो SUPER पूरा नहीं लिखते, सबस्क्रिप्ट के लिए SUB लिखते हैं, उसको क्लोज करते हैं, सुपर को फिर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू क्या इसका आउटपुट आएगा। देखा, अब मिस नहीं कुछ बोलेंगी कि यस इट्स ओके, O2 इट्स गुड, A स्क्वायर इट्स गुड, आई एम फ्रॉम बॉटनी मैम। बॉटनी में भी ये सब यूज होता ही है, O2 ये सब तो बॉटनी में भी आएगा ही, ऑक्सीजन लेवल ये सब तो आएगा ही, ठीक है। तो उस टाइप के जो भी डेटा को आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला, बहुत सारे स्टार्च, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप अपने अपने सब्जेक्ट स्ट्रीम से भी जोड़ सकते हो इन सारे टैग्स को, ठीक है। क्योंकि कोई जरूरी तो नहीं है कि वेबसाइट सिर्फ कंप्यूटर वाले बनाएंगे, एजुकेशनल वेबसाइट्स बनता है, बहुत सारे ऑनलाइन क्वेश्चंस के लिए वेबसाइट्स बनते हैं, बहुत सारे वेब पोर्टल यहाँ पे सिर्फ क्विजेज है, क्वेश्चंस है, तो हर एक टाइप की चीजें वहां पे दिखेंगी ना। तो HTML कोशिश किया कि हर एक टाइप के यूजर के लिए सारे ऑप्शंस दे ताकि वो अपना वेब पेज को बहुत इजीली डिजाइन कर सके, ओके। तो इस पे बहुत ज्यादा इसको हम लोग इस टॉपिक को बहुत एक्सटेंड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ सिंपल टैग, ओके। जहाँ पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी मैम अब कहाँ यूज करेंगे तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, हमें जब लगेगा वैसा। कभी हो सकता है किसी वेब पेज में नहीं भी जरूरत पड़े तो नहीं यूज करेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी कि वी हैव टू यूज इट ओनली। इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ेगी वैसा कुछ हमें लिखना है तो यूज कर लेंगे, ठीक है।
Now let's come to the next. P28. 2728. Oh, what is it all about? Yes, very interesting topic. Very interesting topic. And this आज अभी के बाद आपको थोड़ा मजा आएगा बनाने में, राइट? एक स्टूडेंट था, आई डोंट नो नेम, कि मैम कैसे हम लोग कभी कभी किसी वेबसाइट पर देखते हैं, वहाँ क्लिक करते हैं तो कहीं और चले जाते हैं। तो आज हम लोग भी वैसा एक छोटा सा वेबसाइट बना लेंगे, जिसमें जैसे मान लो मैं एक वेब पेज बनाना चाहती हूँ जिसमें कोई पटना में न्यू आया है, उसको नहीं पता है कि पटना में अच्छे अच्छे कॉलेजेस का वेबसाइट कैसे खोजेंगे, क्या खोजेंगे, तो हम उसको एक वेब पेज बना के दे दी। देखो भाई, इफ यू वांट टू विजिट AN कॉलेज, तो इस पे क्लिक करना, you will directed to AN college website. If you want to visit Patna Women's College, so you will be clicking on this particular site. So now we are going to discuss about very important concept of HTML. My dear student, please pay attention. Very important. Okay, linking. And this is, you can say the heart and soul of a web page, because website is a collection of so many web pages. From the very first day I'm saying this, I'm shouting this, yes, website is not a single web page, rather it is a collection of so many web pages, and all those web pages are interconnected or interlinked together. They are interconnected or they are interlinked together. So if we want, it was it was me, Ashish Shankar, it was I ma'am, okay, it was you, okay, got it. So Ashish, so your wait is over now, so we are here with the linking concept, right? तो हम लोग एक वेबसाइट से किसी और URL पे डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते हो, आप अगर अपने कॉलेज के वेबसाइट पे हो, ठीक है, और आपके कॉलेज के पास बहुत अलग अलग डिफरेंट वेब पोर्टल का आपका रजिस्ट्रेशन है, आपका यूजर आईडी पासवर्ड है, तो इफ यू वांट टू फेच दिस जर्नल, तो क्लिक ऑन दिस वेबसाइट, NPTEL के वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। या फिर आपके कॉलेज में बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं जो कि IITs के द्वारा कंडक्ट होता है, एम आई राइट मैम? ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स या ऐसे चीजें हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट पे स्टूडेंट रहेंगे और वो डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से उनके वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाएंगे लॉगिन करने के लिए। समटाइम्स आप फेसबुक पे रहते हो या फिर आप वहां से आप अपने जीमेल पे लॉगिन कर लेते हो, डायरेक्टली आपका वो साइट वहां पे आपको क्या करता है, रीडायरेक्ट कर देता है, राइट? या फिर कभी कभी हम लोग किसी और साइट पे है, वहां पे एक ऐड आ गया, उस ऐड पे क्लिक कर दिया, हम लोग किसी और वेबसाइट पे चले गए, ऐसा बहुत बार होता है। तो दैट इज इन द टेक्निकल टर्म हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, लिंकिंग। तो जनरली लिंकिंग दो कैटेगरी का होता है। एक होता है एक्सटर्नल लिंकिंग, मतलब हम अपने वेबसाइट से कहीं बाहर के किसी डॉक्यूमेंट को या बाहर के किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग। और एक होता है आपका इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग विद इन द सेम वेबसाइट, जैसे मान ली, और विद इन द सेम वेब पेज। जैसे मान लो हमारा एक वेब पेज बहुत बड़ा है, हम टॉप में हैं और वहां पे मैंने एक ऑप्शन दे दिया डिटेल, जैसे ही डिटेल पे क्लिक किया तो उस वेब पेज के नीचे में उसका डिटेल इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, तो मैं डायरेक्टली उसी वेब पेज के नीचे वाले ऑप्शन में आ जाऊंगी। तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। लिंकिंग इनसाइड सेम वेब पेज, एक वेब पेज के अंदर जब डॉक्यूमेंट में आगे पीछे आप स्विच ओवर करोगे, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। सो इंटरनल लिंकिंग इज ऑफ नो यूज। जनरली हमारा वेब पेज इतना बड़ा नहीं होता है कि हम लोग को वेब पेज के अंदर ही लिंकिंग करना हो। जनरली एक वेब पेज नॉर्मली ऐसा होता है कि एक इंफॉर्मेशन एक स्क्रीन पे दिख जाता है, हार्डली थोड़ा बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है, राइट? So here I am focusing much more on external linking, but I will be discussing internal linking also, so don't bother about that. But let's start with the external linking, right? HREF stands for reference. REF stands for references. HREF references, कहाँ से रेफरेंस लेना है, कहाँ जाना है, राइट? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, तो उसके लिए हमारे HTML का एक टैग है, दैट इज कॉल्ड एंकर टैग। ए टैग स्टैंड्स फॉर एंकर। ये जो ए टैग मैंने यूज किया ना यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं एंकर टैग, ANCHOR, एंकर टैग। एंड एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है href, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस, कि कहाँ पे आपको जाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक लिख दिया
टू विजिट AN कॉलेज, तो ये हमारा स्क्रीन पे दिखेगा टू विजिट AN कॉलेज। उसके बाद आपको दिखेगा क्लिक हियर, ये आपको नहीं दिखेगा। उसके नीचे आपको क्या दिखेगा, क्लिक हियर। ये क्लिक हियर नॉर्मल नहीं दिखेगा, ये एक अब लिंक बन जाएगा, और इस क्लिक हियर एक ब्लू कलर का ये लिंक बन जाएगा और वो अंडरलाइन आपको दिखेगा। और जैसे आप क्लिक हियर पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो आपको रीडायरेक्ट कहाँ कर देगा, AN कॉलेज के वेबसाइट पे। फिर इस एंकर टैग को आपको क्लोज करना पड़ता है। एंड दिस इज द कंप्लीट URL। ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट URL डाल दिया है, किसका, AN कॉलेज का। मैंने AN कॉलेज का वेबसाइट खोला, वहां से उसका एड्रेस कॉपी किया और यहाँ पे आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने ब्रेक टैग लगाया है। फिर यहाँ पे हम बता रहे हैं टू विजिट पटना वुमेन्स कॉलेज। अगर आप पटना वुमेन्स कॉलेज को विजिट करना चाहती हैं, ओके, तो यू हैव टू क्लिक ऑन क्लिक हियर। जैसे ही क्लिक हियर पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो आपको रीडायरेक्ट कहाँ कर देगा, पटना वुमेन्स कॉलेज के वेबसाइट पे। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। और यहाँ पे मैं थोड़ा स्लो होंगी क्योंकि ये थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहीं से हमारा प्रोजेक्ट वर्क शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कि इस कोर्स के दौरान हम लोग छोटे छोटे साइट्स बनाते भी रहें। तो आज के टॉपिक के बाद एटलीस्ट आपका एक लेवल हो जाएगा कि आप ये डिसाइड कर लो, आप एक टॉपिक सेलेक्ट कर लो, कुछ भी टॉपिक। अब डोंट टेक टॉपिक सो डिफिकल्ट जिसमें मुझे बताना पड़े मैम इस टॉपिक में हम क्या क्या पेजेस बनाए। कुछ भी, एनीथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट। यू डिजाइन वेबसाइट फॉर योर डिपार्टमेंट, यू डिजाइन अ वेबसाइट फॉर योर कोई शॉप बगल में है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, या फिर कोई छोटा कुछ भी चीज जिसमें 4-5 वेब पेज हो, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, गैलरी उसका हो, कुछ इस टाइप का। तो एक एक टॉपिक आप लोग डिसाइड कर लोगे, और ये अभी मेरे को बताना नहीं है, अभी आप उसको रखोगे डिसाइड करके, सो दैट हम लोग प्रिपेयर हो जाएंगे कि हम लोग कैसे उस पर वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक वेब पेज बनेगा जिसमें हमें ये सारे चीजों को हम लोग यूज करेंगे। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस P28। वेरी इंटरेस्टिंग। कैन यू सी हियर टू विजिट AN कॉलेज। अब वो देखो URL नहीं दिख रहा ना, यहाँ देखो ये वाली चीजें नहीं दिख रही ना, बस ये दिख रहा है टू विजिट AN कॉलेज, और क्या दिख रहा है, क्लिक हियर। लेकिन आप देखोगे क्लिक हियर भी नॉर्मल नहीं दिख रहा है, देखो वो ब्लू कलर का हो गया है और अंडरलाइन हो गया, वो एक लिंक बन गया है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर लिंक। इसको क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक। ओके, ये लिंक बन गया है, राइट। तो अब जैसे ही मुझे AN कॉलेज पे विजिट करना है, मैं हूं अपने वेब पेज पे P28.html वेब पेज। मैंने एक्सटर्नल लिंकिंग दे दिया है, कितने साइट्स का, 2 साइट्स का मैंने दिया है। तो अगर हम कोई वैसा वेबसाइट बना रहे जिसमें कॉलेज के सारा इंफॉर्मेशन को स्टोर करे, या फिर एक ऐसा वेबसाइट जो कोई नए यूजर को बताए कि पटना में चीजें कहाँ कहाँ पे, तो एजुकेशनल कॉलेजेस ये हैं, रेस्टोरेंट ये हैं, तो सबका अपना अपना एक वेबसाइट होगा, राइट। तो हम लोग जैसे अब देखो, प्लीज पे अटेंशन, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, क्लिक हियर, ओह व्हाट हैपेंड, आ गया ना AN कॉलेज का वेबसाइट। My dear student, can you see it? No expressions at all. क्या is it? It was so interesting. I was so eagerly waiting to show you this. कि एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये वेबसाइट कैसे वर्क कर रहा है बैकग्राउंड में। जैसे आप समझ गए होंगे कि अगर डिपार्टमेंट पे हम क्लिक कर रहे हैं तो एक और वेब पेज बना होगा जिसपे वो रीडायरेक्ट हमें कर दे रहा है। या फिर आप देखो ना, आपके यहाँ पे ही जैसे बहुत सारे लिंक होंगे, जैसे देखो ये रजिस्ट्रेशन फॉर ई बुक, ये भी एक लिंक है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये मुझे एक अलग जगह पे रीडायरेक्ट कर दे रहा है ना मुझे रीडायरेक्ट, देखो। तो आप समझ सकते हो कि उसके बैकग्राउंड में भी क्या है, एक एंकर टैग यूज है। उसके बैकग्राउंड में भी आपका एक एंकर टैग यूज है, नोटिस फॉर लिस्ट इन PDF। तो उसको क्या कर दिया, उसको वो किससे लिंक कर दिया, इस डॉक्यूमेंट से लिंक कर दिया। वो किससे लिंक कर दिया, इस डॉक्यूमेंट से लिंक कर दिया। रिक्रूटमेंट नोटिस, कुछ भी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई, ये सब क्या है, एक लिंक बना। क्योंकि देखो ना, जैसे ही आप इस पे ले जाते हो ये अंडरलाइन हो जा रहा है, आप देख रहे हो ये अंडरलाइन हो जा रहा है। इसका मतलब दिस इज अ लिंक, दिस इज अ लिंक। ये आपका क्या है, एक लिंक है। इस और भी बहुत सारे होंगे, सब तो बस टेक्स्ट है, बट दीज आर डिफरेंट लिंक्स। ये सारे क्या है, अलग अलग आपके लिंक है। नोटिस फॉर क्लास रूटीन, जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे हमने अपने कोड में href में एक वेबसाइट का एड्रेस दिया है, और यहाँ पे
यहाँ पे जो दिख रहा है कॉलेज में वो एक पीडीएफ का एड्रेस दिया हुआ है कि वो पीडीएफ कहाँ पे है, तो उस पीडीएफ पे हमारा लिंक हो जा रहा है। आर यू गेटिंग? जैसे यहाँ पे हमारा जैसे ही क्लिक करें तो हमारा एक पीडीएफ खुल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी एंकर टैग यूज है और href में उस पीडीएफ का पूरा लोकेशन डाला हुआ कि वो पीडीएफ हमारे जहाँ पे भी स्टोर होगा वहां पे हमें क्या कर दे रहा है, रीडायरेक्ट कर दे रहा है, राइट। hyperlink is not working ma'am, please show the program। of course you see, आपने यूआरएल सही नहीं डाला होगा। यूआरएल को कभी लिखना मत हाथ से, https ऐसा कभी लिखा नहीं जाता, हम लोग सीधे कॉपी पेस्ट, बिकॉज यूआरएल इज क्वाइट पॉसिबल। मान लो कोलन छोड़ दिया, स्पेसेस, बिकॉज एवरीथिंग हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस, राइट। सो जनरली यूआरएल को कभी आप टाइप मत करो, इट इज इजी। सिंपली आप यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे जाओ, ठीक है, यहाँ चले जाओ, इसको पूरा कॉपी करो, ये है ना, राइट क्लिक किया, कॉपी, वहां जाके पेस्ट, ठीक है, तो इट विल वर्क फैंटास्टिकली। ओके मैम, हो गया, थैंक यू, गुड। तुरंत में घबरा जाता है, इट्स नॉट वर्किंग, कॉपीड, इट्स नॉट, इट विल वर्क। तो दो रीजन हो सकता है, अदर इंटरनेट कनेक्शन में भी स्लो, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो रीडायरेक्ट कर रहा है ना दूसरे पेज पे, क्योंकि वो आपको रीडायरेक्ट कर रहा है दूसरे पेज पे, तो मे बी फॉर दैट रीजन इट मे बी स्लो। अब जैसे देखो विमेंस कॉलेज पे जाना है, तो हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वी विल बी रीडायरेक्टेड टू द वेबसाइट ऑफ पटना विमेंस कॉलेज। तो आप किसी भी वेबसाइट पे कहीं पे भी अपने वेब पेजेस को किसी का भी यूआरएल डाल के आप उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो। तो बिकॉज देखो यहाँ पे भी थोड़ा स्लो खुल रहा है, तो थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से भी वो प्रॉपर्ली आपका यूआरएल वर्क नहीं कर रहा होगा, ठीक है। लेट्स गो बैक टू आवर प्रोग्राम। So we discussed till 28, right? Now it is in 29. Let me check it. ये हमने क्या किया, एक सिंपल सा आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। वहां पे तो हम लोग एक अलग अलग वेबसाइट पे चले गए, अब हम चाहते हैं कि हम अपना ही एक वेब पेज बनाएं। तो जैसे हमारा ये होम पेज है, ये जो P29 पेज है, इसको मान लो ये मेरा मेन वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 3 वेब पेजेस का लिंक दिया, एक मैंने home.html बनाया है, एक aboutus.html। तो कोई जरूरी नहीं है कि href में हमेशा हम लोग अपना साइट बनाएंगे तो वहां तो खुद से यूआरएल डालना होगा ना। अच्छा ये बताओ, जब तुम अपना वेबसाइट बनाओगे तो जब तुम यूआरएल डालोगे तो यूआरएल खुद का थोड़ी होगा, यूआरएल तो किसी को तुम लिंक करना चाहते हो, नहीं तो तुमको अगर अपने वेब पेजेस में ही आपस में लिंक करना है तो अपने वेब पेज का एड्रेस डालोगे। अब जैसे मान लो ये जो मैंने P29 प्रोग्राम लिखा है, इसको पहले मैं रन ही कर देती हूँ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्या वर्क है। जैसे P29 है मेरा, ठीक है। अब जैसे इस P29 पेज में देखो मैंने 3 लिंक बनाए, एक होम बनाया है, एक अबाउट अस बनाया। जैसे ही होम पे क्लिक करेंगे हम अपने वेबसाइट के होम पेज पे आ गए, जैसे ही हम अबाउट अस पे क्लिक करेंगे हम अपने वेबसाइट के अबाउट अस पेज पे आ गए। इसको हम डिजाइन कर सकते हैं सुंदर सा, बस अभी मैंने बस एक बैकग्राउंड कलर डाल दिया है। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो हम कॉन्टेक्ट अस के वेब पेज पे आ जाएंगे। तो जब हम अपना वेबसाइट बनाएंगे तो हमारे पास 10-5 वेब पेजेस होगा, सारे वेब पेजेस हमारे अलग अलग डिजाइन होंगे और वो एक ही फोल्डर में स्टोर होंगे। देखो ये सारा चीज इसी फोल्डर में स्टोर है, आप देखो होम, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ये मैंने 3 वेब पेजेस बनाया। इसकी कोडिंग है, इसकी कोडिंग क्या है, सिंपली जैसे HTML की कोडिंग होगी। अब आप देखो होम का क्या कोडिंग होगा, सिंपली मैंने क्या किया है, एक लिख दिया है home.html और बस इसमें एक बॉडी डाल दिया और बीजी कलर क्या डाल दिया, रेड डाल दिया, कुछ नहीं किया, बस बीजी कलर क्या डाल दिया है, रेड डाल दिया है। इसी तरह कॉन्टेक्ट अस पे बीजी कलर ब्लू डाल दिया है, एक में येलो डाल दिया, ताकि हमको समझ में आए कि अलग अलग वेब पेज पे हम लोग चले गए, ठीक है। यहाँ पे href में क्या डाल दिया, home.html, home.html। तो मेरा जैसे ही होम पे क्लिक करेगा तो सीधे हम कहाँ चले जाएंगे, home.html वाले वेब पेज पे। कहाँ चले जाएंगे, होम डॉट, और ये home.html वेब पेज होना चाहिए। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम home1 लिख दिए तो देखो ये एरर, क्योंकि home1 नाम का कोई वेब पेज है ही नहीं। देखो जैसे इसको रिफ्रेश किए, अब हम क्लिक इस होम पे कर रहे हैं ना,
अब देखो, योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड क्योंकि देयर इज नो फाइल लाइक होम1 नाम का कोई फाइल ही नहीं है मेरा, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। मेरे पास जो मैंने 3 वेब पेजेस बनाया है वो मैंने home.html बनाया है, aboutus.html बनाया है, contactus.html बनाया है, और तीनों में href अपने पेज का URL दे दिए। और ये पेज मेरा कहाँ है? इसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में हमारे बाकी वेब पेजेस हैं। तो जैसे ही हम अपने वाले इसको रन किए, इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो हम रन अपने मेन पेज को किए, जैसे हम अपने मेन पेज को रन किए, 29 को रन किए, ठीक है। तो 29 में हमने 3 पेजेस का लिंक दिया, अबाउट अस पे चले गए, फिर यहाँ पे होम पे आ गए, बैक गए, यहाँ से कॉन्टेक्ट अस पे आ गए, राइट? इज दैट क्लियर? आई होप आई एम क्लियर टू यू। मुझे एक तो लिंकिंग, एक मार्केट टैग बच गया, चलो कोई बात नहीं। पहले इतना समझ में आया या नहीं? जस्ट टेल मी दिस मच पार्ट इज क्लियर और नॉट, क्योंकि ये चीज थोड़ा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने होम पेज कैसे बनाया, कुछ नहीं बनाया, होम पेज में सिंपली बना दिया। अगर अबाउट अस आप देखना चाहते हो, देखो अबाउट अस भी कुछ नहीं है, बस सबका कलर चेंज है। इसको अच्छे से आप डिजाइन कर सकते हो तब तो। जैसे देखो अबाउट अस पेज भी नॉर्मल है, येलो कलर बस बना डाल दिया ताकि मुझे समझ में आए कि अलग अलग पेजेस हमारे चेंजेस हो रहे हैं। कॉन्टेक्ट अस भी हमारा बहुत सिंपल है। तो ये सारे वेब पेज पहले आपको बनाने पड़ेंगे, तब तो वो लिंक होगा। अब बनाओगे नहीं वेब पेज, बस यहाँ पे नाम लिख दोगे। तो मैंने होम बनाया, अबाउट अस बनाया, कॉन्टेक्ट अस, ये तीनों वेब पेज पहले डिजाइन कर दिया। उसके बाद P29 प्रोग्राम में मैंने क्या किया, इस तीनों को यूज कर दिया, सबका लिंक बना दिया href करके। यस मैम, समझ में आ गया, क्लियर मैम, यस मैम, ऑल क्लियर, ओके वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे हमने उसका लिंक बना दिया, ठीक है, ताकि जैसे ही यूजर होम पे क्लिक करे तो ये पेज होना चाहिए। और सब पेज मैंने एक ही फोल्डर में सेव किया, राइट? ऑल दीज पेजेस आर स्टोर्ड इन अ सेम फोल्डर, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा 4-5 प्रोग्राम्स और थे, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा जब हम बहुत लोग कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। P29 was there, then we have P30। तो ये सब अभी हम लोग P30 से नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज इट विल बी, अभी आप इतना तक का अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, एंड द वेरी सून आई विल बी शेयरिंग यू दिस PPT। जस्ट मोमेंट, तुरंत मैं ये PPT आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। जिसमें ये 3 छोड़ देना, आप यहाँ तक आप देखना, यहाँ तक 29 तक देखना। इस 3 को मैं यहाँ से हटा ही देती हूँ, अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन टू यू, व्हाट इज दिस, राइट? इस तीनों को छोड़ दो। दिस इज द लास्ट PPT, ओके। दिस आई विल बी शेयरिंग टू यू जस्ट आफ्टर द क्लास, सो दैट सारी चीजें यहाँ पे। ध्यान रखना कि ये 3 पेज जब तक नहीं बनाओगे ये कनेक्ट नहीं होगा। तुम सोचोगे ये 3 पेज डिजाइन ही नहीं किए और तुम इसको रन करोगे और बोलोगे मैम इट्स नॉट लिंकिंग, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मैम यहाँ एंकर टैग मैम मोबाइल से इजीली नहीं हो पाता है। सी मोबाइल इज नॉट कंप्लीट लैपटॉप।